Hello everyone, this is Disha welcoming you to the Chance EduTech. Today I am going to take English of class 10 and the topic is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This lesson has been taken from First Flight. So today I will be teaching part 1 of this lesson. Long Walk to Freedom is an autobiography written by Nelson Mandela. So this lesson relates to the crowning ceremony of Nelson Mandela as the first black South African president. So let's know about this, a brief introduction about this lesson, because this lesson is written by Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So we must know about this lesson first. Okay. This is the picture of Nelson Mandela. He was the first black South African president. Long Walk to Freedom is an autobiography credited to साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला. ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि ये साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को क्रेडिट दिया जाता है इस ऑटोबायोग्राफी के लिए, और ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा गया है. इट वॉज घोस्ट रिटन बाय रिचर्ड स्टेंजल and first published in 1994 by Little Brown and Company. So this autobiography of Nelson Mandela, no doubt it was written by him, but later on it was ghost written by Richard Stengel, and first of all it was published in the year 1994, and who published it? Little Brown and Company published his autobiography. The book profiles his early life, coming of age, education and 27 years spent in prison. इस किताब में उनके अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया है, उनके जीवन काल के बारे में बताया गया है कि जब वो यंग थे तो उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या क्रांति उन्होंने लाई, और जैसे जैसे एज बढ़ता गया तो वैसे वैसे क्या डिफरेंसेस आए इनके बिहेवियर में, इनके लाइफ में, सारे चीज़ों को दर्शाया गया है. ऑफ एज, एजुकेशन एंड 27 ईयर्स स्पेंट इन प्रिजन. तो इनकी एज के बारे में बताया गया है, एजुकेशन के बारे में, और वो 27 साल जेल में रहे इसके बारे में भी चर्चा किया गया है इनकी ऑटोबायोग्राफी में. अंडर द अपार्थाइड गवर्नमेंट, मंडेला वॉज रिगार्डेड एज ए टेररिस्ट and jailed on the infamous Robben Island for his role as a leader of the then outlawed African National Congress and its arm. और नेल्सन मंडेला अंडर अपार्थाइड सिस्टम के बारे में पहले बता दूं. अपार्थाइड सिस्टम इज a system of government where the government makes differences on the grounds of color and race. तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में करीब 300 सालों तक व्हाइट्स का रूल था. The British people ruled over South Africa and they only advocated the system of apartheid. And under the system of apartheid, the black people were exploited by the whites. They were not given freedom to live freely. They had to live a different life. They had to live in the chains of bondage and slavery. Who? The black people, the original inhabitants of this land. So, अपार्थाइड सिस्टम के अनुसार नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट माना गया था. He was regarded as a terrorist by the white people. And he was jailed on the infamous Robben Island. रॉबन आइलैंड पर इनको
जेल में भेज दिया गया था फॉर हिज रोल एज ए लीडर ऑफ द देन आउटलॉड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उस समय वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर के रूप में उभरे थे और उनको रॉबिन आइलैंड पर बंदी बना लिया गया था। एंड इट्स आर्म, और उसके जो भी सपोर्टर थे उनको भी। He later achieved international recognition for his leadership as president in rebuilding the country's once segregationist society. और बाद में उसे नेल्सन मंडेला को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, एक इंटरनेशनल पहचान मिला उनके लीडरशिप के कारण। एज प्रेसिडेंट जब बने तो इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, जिन्होंने कंट्री को बहुत अच्छा से रीस्ट्रक्चर किया। ही रीस्ट्रक्चर हिज कंट्री, ही ट्राई टू डेवलप हिज कंट्री, और एक स्टेज पर पहुंचा दिए जो कि एक समय सेग्रीगेशनिस्ट सोसाइटी हुआ करता था, उससे हटकर माने उन्होंने बराबर का दर्जा दिया, सभी को समान अधिकार दिया, व्हाइट्स को भी और ब्लैक को भी। तो ऐसा जो सोसाइटी था अपार्थाइड वाला, उस अपार्थाइड वाला सोसाइटी से बाहर किया। नाउ नेक्स्ट, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सॉरी इधर वॉक छूटा हुआ है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो किताब जो है, और ये एक्चुअली लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बहुत लंबी किताब है, उसी का ये एब्रिज्ड फॉर्म है, ये स्टोरी जो है, ये लेसन जो है। और ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये खास करके साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया है कि उस फ्रीडम में किन किन लोगों ने भाग लिया, और खास करके नेल्सन मंडेला के बारे में दर्शाया गया। On May 10, 1994, Nelson Mandela has taken the vow as the first black president of South Africa. और 10 मई 1994 के दिन नेल्सन मंडेला ने पहली बार वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में उपस्थित रहे, और उन्होंने वादा किया लोगों से कि वो संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। और एंड ही हैज टेकन द वॉ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उनको फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के पद पर आसीन किया गया, उनको नवाजा गया, और वहां पर उन्हें शपथ भी लिया गया। एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग अ न्यूबॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। इसलिए एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री का जन्म हुआ उसी दिन से, 10 मई 1994 के दिन से। नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और नेल्सन मंडेला टुक द ओथ, ही हैज टेकन ओथ एंड हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट फ्रॉम 10th May 1994. Many dignitaries from different countries had come to be part of the most significant day. और बहुत सारे अधिकारी, बड़े बड़े लोग, हाँ, अलग अलग देशों से, विभिन्न देशों से वो लोग आए हुए थे उस इनॉग्रेशन सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए, जिस दिन इनका शपथ समारोह था नेल्सन मंडेला का एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उस दिन बहुत सारे डिग्निटरीज प्रेजेंट थे उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में, और ये एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि वो सारे लोग, बहुत सारे लोग जो अलग अलग देशों से आए थे, वो इसके हिस्सा बने। इन हिज स्पीच excuse me, in his speech मंडेला thanked all those dignitaries। और अपने भाषण में मंडेला ने सारे डिग्निटरीज को धन्यवाद दिया, उस सारे डिग्निटरीज को अपना आभार प्रकट किए उस समारोह में आने के लिए। मंडेला assured his countrymen that his country
would never experience the same separation of one by another। और उस दिन मंडेला ने क्या किया, अपने कंट्रीमैन को सांत्वना दिया, एश्योर किया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वह दिन फिर कभी नहीं आएगा। जितना आपने दुख तकलीफ झेला है 300 सालों तक, अब वो दिन देखने को नहीं मिलेगा किसी को। तो वही बात उन्होंने अपने स्पीच में कहा, लोगों को संबोधन किया, लोगों को संबोधित किया अपने स्पीच में। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका एंड एज ए रिजल्ट अ गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। डेमोक्रेसी की बहाली हुई, डेमोक्रेसी की स्थापना हुई दक्षिण अफ्रीका में, और उसी का परिणाम एक ऐसा गवर्नमेंट का निर्माण हुआ जो कोई भेदभाव नहीं करता। वो गवर्नमेंट भेदभाव वाली बात से दूर रहता, वो सबको समान अधिकार देने वाले गवर्नमेंट का स्थापना हुआ, सरकार का स्थापना हुआ। Freedom from racism is the central theme of the lesson Nelson Mandela A Long Walk to Freedom। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, ये जो कहानी है और ये जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, ये इसका मेन थीम क्या है? रेसिज्म से छुटकारा, रेसिज्म से फ्रीडम ही मेन थीम है इस लेसन का। कि पहले रेसिस्ट लोग थे, भेदभाव चलता था, व्हाइट्स लोग इतना अत्याचार करते थे, भेदभाव करते थे, रेस से रिलेटेड भेदभाव करते थे, प्लस कलर से, कलर ऑफ बॉडी, कलर ऑफ स्किन से भी भेदभाव करते थे। तो इससे छुटकारा पाना ही वो थीम था, छुटकारा दिलाना, सारे लोगों को इस बॉन्डेज से छुटकारा दिलाना इस लेसन का थीम है, सेंट्रल आइडिया है। इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो एक और जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी का एक अंश है, समझ लीजिए, जो लेसन है उसी से लिया गया है। वो लंबी किताब है, तो उसी किताब से इसको लिया गया इस लेसन में। At those times, white-skinned people were the rulers of the society and life was hell for the blacks। उन समय जब नेल्सन मंडेला बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बनने से पहले की बात है, व्हाइट स्किन लोग जो है वो शासन किया करते थे साउथ अफ्रीका पर, और जो ब्लैक लोगों का जो लाइफ था बिल्कुल एक हेल का जैसा हो गया था। हेल और हेवन की बात होती है, वो एकदम नरक के जैसी उनकी जिंदगी हो गई थी। इतना ज्यादा प्रताड़ित होते थे वो लोग व्हाइट पीपल से, ब्रिटिशर से इतना ज्यादा प्रताड़ित होते थे कि उनका जो जिंदगी है एक हेल बन के रह गया था। किनका? ब्लैक लोगों का, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे साउथ अफ्रीका के, उनके। मेनी पीपल स्ट्रगल्ड फॉर देयर राइट्स एंड मंडेला कॉल्स सिटीजन्स द बेसिक एसेट ऑफ एनी कंट्री। और उस समय बहुत सारे लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और मंडेला जो है, मंडेला सिटीजन्स को ही अपना एसेट मानते हैं, अपने देश का एसेट अपने सिटीजन्स को मानते हैं। मतलब सारा क्रेडिट सिटीजन्स को कहते हैं। वो कहते हैं सिटीजन्स ही, वहां के जो नागरिक हैं साउथ अफ्रीका के, वही उनका अमूल्य धन है, उनका एसेट है। नेक्स्ट, नाउ द लेसन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर according to the book। Apartheid is a political system that separates people according to their race। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? So apartheid system का हमने जिक्र किया था जब मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था इस लेसन का। तो apartheid एक पॉलिटिकल सिस्टम है। दिस इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस एंड कलर। जो जहां जाति भेद होता है, जहां कलर का भेद होता है,
उसी को अपार्थाइड कहा गया है। और इस पॉलिटिकल सिस्टम को व्हाइट स्किन्ड पीपल, आई मीन द ब्रिटिशर्स, दे इंप्लीमेंटेड इट, उन्होंने इसको लगाया था, इस सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था। और इसी सिस्टम के अनुसार ब्लैक लोगों पर बहुत अत्याचार होता था। ओरिजिनल जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन पर खूब अत्याचार होता था। कौन करता था? व्हाइट स्किन पीपल। यह पूछा जा रहा है, कैन यू से व्हिच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो बहुत ज्यादा साल पहले नहीं, कुछ साल पहले ये तीनों कंट्री में कौन सा कंट्री पर यह अपार्थाइड वाला सिस्टम लगाया गया था? 3 देश का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये लेसन के इंट्रोडक्शन में मैं बोल दिया था, बता दिया था आप लोगों को। तो दिस इज एक्चुअली साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसमें अपार्थाइड का सिस्टम लागू किया गया था। नाउ यू सी, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो यहां पूछा जा रहा है विद्यार्थियों से, आपसे, कि आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना था पहले? हो सकता है आप सुने होंगे, जानते होंगे। मंडेला और उसका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो लोग सारे जिंदगी वो लोग संघर्ष करता रहा अपार्थाइड जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट में। अपार्थाइड वाज एन इविल सिस्टम व्हिच वाज laid down by the Britishers, by the white skinned people. Mandela had to spend 30 years in prison. मंडेला को करीब 30 सालों तक जेल में रहना पड़ा, जेल में बिताना पड़ा। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. और अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, जो कोई लोगों के द्वारा चुना गया सरकार बना। और 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे और मंडेला उस समय वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ, सारा अपार्थाइड सिस्टम, ओल्ड सिस्टम को खत्म कर दिया गया और नए सिस्टम को लागू किया गया, जिसमें हर लोगों, हर व्यक्ति को आजादी मिली, फ्रीडम मिला। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। इस एक्सट्रैक्ट में जो कि ऑटोबायोग्राफी है, इस उसका उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, मंडेला क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? एक हिस्ट्रिक ओकेजन के बारे में, एक ऐतिहासिक पल के बारे में, एक ऐतिहासिक समय के बारे में बात कर रहे हैं, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन। तो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में स्वेरिंग इन सेरेमनी था उनका ही, जिसमें उनको उनसे ओथ लिया गया, ओथ दिलाया गया उनको, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उनको एस्टैब्लिश किया गया। तो उस सेरेमनी को कहा गया है द इनॉग्रेशन। मतलब समझ लीजिए उद्घाटन होता है कोई चीज का, उनका भी उद्घाटन ही था साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट का, एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news items from the BBC of 10 May 1994. तो ओकेजन के बारे में बता दिया हूं, लेकिन यह पूछा जा रहा है तुम बता सकते हो कौन सा ओकेजन था? ऑलरेडी मैं इस ओकेजन के बारे में बता दिया हूं। ओके, तो एक बीबीसी का न्यूज है जो उसको पढ़ेंगे, ये आपका लेसन का ही अंश है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। हेडलाइंस है, बीबीसी का न्यूज है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये हेडलाइंस है न्यूज का। और न्यूज में क्या लिखा गया है देखिए, बीबीसी न्यूज में, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। मैं पहले ही आपको बताया था, करीब 300 सालों तक, 3 शताब्दियों तक ब्रिटिशर्स का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, उसी को व्हाइट्स कहा गया है। साउथ अफ्रीका जैसे बड़े विशाल देश पर उनका शासन रहा। मिस्टर मंडेला's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of
साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार मिस्टर मंडेला के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीटों में 252 सीट जीते और एक इतिहास रच दिया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो उद्घाटन समारोह हुआ, कौन सा उद्घाटन समारोह था? साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट आई मीन नेल्सन मंडेला was crowned in as the first black South Indian president on 10th May 1994. So this was the इनॉग्रेशन सेरेमनी। ओके, तो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुआ, ये जो उद्घाटन समारोह, ये यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ था। यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर प्रिटोरिया, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एक शहर का नाम है, और यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में ही हुआ था। जो ओपन हॉल है, एम्फीथिएटर मतलब हॉल मतलब एक ओपन हॉल, ऊपर से खुला रहता है और बहुत बड़ा हॉल है, और जहां 140 देशों से ज्यादा के देशों के लोग, 140 से ज्यादा देशों के लोग, पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज आए हुए थे इसका साक्षी बनने के लिए, इनका स्वेरिंग इन सेरेमनी का साक्षी बनने के लिए, विटनेस बनने के लिए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और नेल्सन मंडेला जब लोगों का संबोधन कर रहे थे, तो उसी संबोधन में उन्होंने यह बात कही कि कभी नहीं, फिर कभी नहीं ये दिन आएगा कि ये ब्यूटीफुल लैंड, ये जो सुंदर सा भूमि है साउथ अफ्रीका का, वहां किसी का अत्याचार झेलना पड़ेगा, कोई किसी की बुराई करेगा, हर कोई आजादी से रहेंगे, कोई किसी पर रोक नहीं लगा सकता है, कोई ऑपरेस नहीं कर सकता है। तो ऐसा कभी और दिन नहीं आएगा। आज से समझ लो कि सारा फ्रीडम लोगों को मिल गया, आप सभी को मिल गया, यह उन्होंने अपने संबोधन में कहा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और हैप्पी सीन्स, जॉयफुल सीन्स वेर सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। And in this inauguration, all the people belonging to the black, white and colored, they were celebrating the occasion together. तो सभी लोग, ब्लैक हो, व्हाइट हो, कलर्ड हो, सभी एक साथ मिलकर इस ओकेजन को, इस उद्घाटन समारोह को सभी वेलकम कर रहे थे और सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे सारे लोग। मोर देन 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. करीब 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, जो कि आदमी भी हैं, औरतें हैं और बच्चे, सभी जाति के उमंग भरे अंदाज में वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशियों से चिल्ला रहे थे। कहां? इन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के गली में, रास्ते पर सब एंजॉय कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, क्योंकि उनके चहेते जो लीडर है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में उनको नवाजा जा रहा था, इसीलिए सभी खुश थे। नेक्स्ट, यू जस्ट सी swearing in ceremony of Nelson Mandela. The picture is over here. The lesson starts. 10th May dawned bright and clear. 10 मई का जो दिन था 1994 का, वो बहुत ही, उस दिन जो दिन था बहुत ही ब्राइट था, हाँ, बहुत ही ब्राइट और क्लियर था, साफ सुथरा दिन था, बादल वाला दिन नहीं था, एकदम सूर्य अच्छा से उगा था, बहुत ब्राइटली कलर्ड डे था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो नेल्सन मंडेला का कथन है कि पिछले कई दिनों तक ये बहुत सारे डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर से घिरे हुए थे,
मतलब लोग आ रहे थे इनसे मिलने के लिए और उनको काफी समय दे रहे थे। कौन? नेल्सन मंडेला। वो उनसे मिलने आ रहे थे, अपना रिस्पेक्ट देने आ रहे थे। इनॉग्रेशन से पहले, उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले लोग आ रहे थे, अलग अलग देशों से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे थे, बड़े बड़े नेता आ रहे थे, बड़े बड़े डिग्निटरीज आ रहे थे, उससे वो पूरे घिरे हुए थे। कौन? नेल्सन मंडेला। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। और दक्षिण अफ्रीका के मिट्टी पर ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड था, एक बहुत बड़ा गैदरिंग था लोगों का, इंटरनेशनल लीडर्स का, खास करके अंतरराष्ट्रीय नेताओं का बहुत बड़ा गैदरिंग था इस साउथ अफ्रीकन सॉइल पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये जो उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, द इनॉग्रेशन, ये बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन से बना हुआ एम्फीथिएटर मतलब हॉल, ओपन हॉल में हुआ। और वहीं पर यूनियन बिल्डिंग्स का ही एक अंग है एम्फीथिएटर प्रिटोरिया में, वहीं पर इनका उद्घाटन समारोह हुआ था। प्रेसिडेंट पद पर इनको आसीन कराया गया था यहीं पर। लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ध्यान दें, कितने दशकों तक, मतलब 300 सालों तक चर्चा किया गया है। ये जो जगह है प्रिटोरिया, लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, ये साइट रहा है व्हाइट सुप्रीमेसी का। व्हाइट सुप्रीमेसी मतलब ब्रिटिशर्स का राज रहा इस मिट्टी पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर करीब 300 सालों तक। और अभी यह ऐसा साइट बन गया, ऐसा दृश्य बन गया जहां की इंद्रधनुषी रंग के लोग यहां जमा हुए थे। डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंग के लोग, गोरे, कुछ कम गोरे, कुछ सांवले, कुछ काले, इस प्रकार के लोग वहां शामिल हुए यहां पर साउथ अफ्रीका के पहला नॉन रेशियल गवर्नमेंट का स्थापना करने के लिए, जो कि जाति का भेदभाव नहीं करता था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। और उस दिन बहुत ही ऑटम सीजन था और बहुत ही सुंदर दिन था। उस दिन इनका साथ देने के लिए आई मीन नेल्सन मंडेला का साथ देने के लिए उनकी बेटी जेनानी भी उनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम पर सबसे पहले फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट को बुलाया गया शपथ समारोह के लिए, शपथ लेने के लिए पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क को बुलाया गया, जो कि पहले वो शपथ लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई विल कंटिन्यू दिस लेसन इन द next class on this topic. The part 2 of the lesson I will be continuing in the next class. So till then, goodbye. Thank you.